Hello, dear students, and for your kind perusal, for your understanding, I'm back again with another video that is made on paper one that you have like in a very short while. Paper one, unit 3, Renaissance, and nowadays it is called Renaissance. And the topic we are going to cover today is the prince. So overall prince mein kya hai, what Machiavelli is trying to say, that's very important to learn. And just believe me, after just watching this video, you will be all prepared for your exam and there won't be any problem. Let's have a look at the whole text and what is there in your syllabus. Even if I won't be able to share the notes because there are certain security codes, and I guess some of you are finding problem in downloading and in accessing the link too. So try to note it down. I'll be very slow in telling you what is important. So try to note it down along with. Or just keep in your mind, if you have good hold on your language, good command over the language and your subject, you are going to crack this answer in no time. Now, first of all, it's important to know what this Prince is. So, Prince is a work written by Machiavelli and it contains 26 chapters in total. Chapter 1 to 11, they are about types of principalities or states. कि एक कंट्री में स्टेट्स कैसी होनी चाहिए. इनहेरिटेड, जो एक रूलर को अपने फादर से मिलेंगी. मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटीज़, जो वो खुद हमला करके बनाएगा. न्यू प्रिंसिपैलिटीज़ और एक्लियस्टिकल प्रिंसिपैलिटीज़. तो ये सारी प्रिंसिपैलिटीज़ हैं. इसके बाद चैप्टर 12 टू 14 में बात हो रही है टाइप्स ऑफ आर्मीज़ एंड कॉन्डक्ट की. कैसी कैसी आर्मीज़ होनी चाहिए. मर्सनरीज और हायर्ड सोल्जर्स, ऑक्सिलरीज, लोन आर्मी जो लोन पे ली जाती है, नेटिव ट्रूप्स जो डिज़ायरेबल होते हैं, नेटिव्स वो पार्ट लेते हैं. मिक्स्ड ट्रूप्स में नेटिव्स और आउटसाइडर्स दोनों आते हैं. सो अ वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ समरी ऑफ टोटल प्रिंस क्या है इसमें. एंड द थर्ड पार्ट, दिस इज इन योर सिलेबस, दिस वन. Chapter 15 to 23, character and behavior of a prince specifically. So whether he should be generous, he should be kind, he should pretend to be kind. उसको दिखावा करना है कि वो generous है. Generosity, cross means नहीं होनी चाहिए. Mercy, नहीं, दिखावे की रखो. Promises break करने हैं उसको. Should target goodwill only, but अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है. Should take great projects. अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर वो लेगा तो उसका दबदबा बना रहेगा. एंड देन ही शुड हैव वाइज एडवाइजर्स. अगर खुद अक्लमंद नहीं है तो उसके पास एडवाइजर्स बड़े अच्छे होने चाहिए, और इसको हम डिटेल में करने वाले हैं. चैप्टर 24 टू 26 जो है लास्ट वाले 3 चैप्टर्स, इटलीज डेस्परेट पोलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात हो रही है. लास्ट चैप्टर जो है दैट्स अ प्ली टू रिक्वेस्ट टू मेडिसी फैमिली टू सप्लाई अ सक्सेसफुल किंग और अ प्रिंस. तो फैमिली को रिक्वेस्ट हो रही है कि आप एक अच्छा सा प्रिंस दुनिया को दें. नाउ लेट्स कम डाउन टू द एग्जैक्ट आंसर. सो दिस इज the answer, this is the unit. So definitely it is not very precise, it is in detail, but the matter that is not required, that is being deleted, usko mark kara hua hai ki ye nahi chahiye. So it can be Machiavelli as a prose writer of Renaissance. You can have a question on the themes of the prince. Basically prince, how prince shows Renaissance elements, प्रिंस के साथ रिलेट करके रेनेसा एलिमेंट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका. हाउ मैकियावेली इज द प्रिंस इज अ मास्टरपीस ऑफ रेनेसा लिटरेचर, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो इतनी ज़्यादा डिटेल ये लिख दी है लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है. निकोलो मैकियावेली was born in Florence. No, it's go simple. He was a Renaissance writer. He was a Renaissance writer, right? So he was appointed as a political secretary in the New Republican. ये सब आपकी नॉलेज के लिए चीज़ें हैं. इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट, इट वोंट मेक डिफरेंस बिकॉज आंसर इज क्वाइट लेंथी. सो यहाँ पे what happened, he was a secretary, but after when the republic fell, जब एक गवर्नमेंट टूटती है दूसरी गवर्नमेंट आती है, so he was मेडिसीज जब आ गए पार में, so they fired him and he was tortured as a conspiracy suspect. Meanwhile he wrote political works such as The Prince. तो जब ये जेल में था तब इन्होंने ये लिखा. Discourses, The Art of War and so on. और basically ये भी सबको अच्छा नहीं ना लगेगा that he is actually revealing all the traits, he is revealing the truth behind the political rule. So he lived in an era when Renaissance was in full swing. तो जब Renaissance पूरे जोर पे था तब ये रहे हैं, तब ये थे.
एज पर द कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी, रेनेसां इज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। तो ये वाला आपका पार्ट मेन आंसर में भी काम आ सकता है, जो फर्स्ट आंसर है आपका, जॉर्ज पैराफिट के व्यूज हैं जिसमें, और ये उसकी ऑप्शन में साथ है उसके। दिस यूनिट कंटेन्स 3 टॉपिक्स। वन इज George Parafit's Renaissance. Second one is this Machiavelli's Prince, and the third one is Erasmus' Praise of Folly. So this period of its rebirth, revival of learning or rebirth of classical learning, it indicates the power of European history marking the waning. Waning is breaking, weakening, losing the grip. Waning of becoming weak in simple. So the period of European history marking the waning of the Middle Ages. तो Middle Ages का जो दबदबा था वो कम हो रहा था, उसका इम्पैक्ट कम हो रहा था, एंड राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। बेटा उस टाइम की तो ये मॉडर्न वर्ल्ड थी ना, क्योंकि हटके था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज वाला टाइम हमारा मॉडर्न चल रहा है, लेकिन आज से 50 साल बाद हम भी पास्ट हो जाएंगे, राइट? द वे एवरी पासिंग सेकेंड इज हिस्ट्री। अब मैंने जो इंट्रोडक्शन में बोला वो हिस्ट्री हो चुका है, दोबारा थोड़ा टाइम वापस आने वाला है। सो द प्रिंस इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इटालियन रेनेसां। इट वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। सो हर कोई मूवमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट आई है बेटा, एवरी मूवमेंट हैड इट्स क्रेडल इन यूरोप से शुरू हुई है। सो इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिलीजियस चेंज, बड़ी सारे रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे यहाँ पे। द डेकेडेंस मीन्स डिक्लाइन। द डिक्लाइन एंड करप्शन ऑफ द कैथोलिक चर्च वॉज बैकलैश्ड इन जर्मनी। द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन वॉज लेड बाय मार्टिन लूथर, और ये आपके दूसरे पेपर में टेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ अ क्रिश्चियन। द फेमस जर्मन रिफॉर्मर, मार्टिन लूथर कौन थे? फेमस जर्मन रिफॉर्मर थे। एरास्मस वॉज अनदर राइटर हु शोकेस्ड द एलिमेंट्स ऑफ रेनेसां इन हिज वर्क्स। तो इसका वर्क क्या है? आपके सिलेबस में है, प्रेज ऑफ फॉली। द टर्म Machiavellian emerged in the 16th century to describe a cruel tyrant who uses any means to achieve his goals. This part is important, this line is important. आपको क्वेश्चन में Machiavellian पे कुछ आ सकता है, Machiavellian आइडियोलॉजी पे आ सकता है। तो इसकी आइडियोलॉजी है क्या कि कुछ भी हो जाए आपका, जैसे कहते हैं कि मौत और जंग में सब जायज़ है, ये ऐसे ही सोच के चलते हैं, ऐसे ही ये यहाँ रूल्स की बात कर रहे हैं। सो व्हाट ही सेज ऑन सेकेंड पेज, ही सेज लाइक वॉर वॉज रूलर्स मोस्ट वैल्यूएबल टूल टू क्रिएट यूनिफाइड नेशंस। तो वॉर करो और अपनी नेशंस को स्ट्रॉन्ग करो। सेंट्रल थीम ऑफ द प्रिंस इज हाउ रेनेसां रूलर्स शुड एक्ट इफ दे वॉन्ट टू प्रिवेल। अगर उनको रहना है सत्ता में तो क्या क्या उनको करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द प्रिंस, द स्ट्रॉन्ग स्टेट रिक्वायर्स अ लीडर हु इज एबल टू डिफेंड हिज पावर एट ऑल कॉस्ट। और यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में मॉरिजियो विरोली कहते हैं दैट Machiavelli composed the prince to show that he knew the art of state better than anybody else in his times. तो ये कोट इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर्स में काम आएगा। तो इनका मानना था, मॉरिजियो विरोली का मानना था कि Machiavelli ने ये वर्क कंपोज करके क्या बताने की कोशिश की है, वो ये शो कर रहे हैं दैट ही न्यू द आर्ट ऑफ स्टेट बेटर देन एनीबडी एल्स इन हिज टाइम्स एंड ही कुड टीच ऑल द गोल्स एंड मीन्स ऑफ पोलिटिकल एक्शन। तो इतना ले सकते हो, हाफ इतना ही यूज़ कर सकते हो। दिस पार्ट कैन बी डिलीटेड, शॉर्ट होगी तो लर्न आसानी से हो जाएगी। तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि उनको सबसे अब जब आप अपने आप को ऐसे डिपिक्ट कर रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो, तो कोई किसी के भी टारगेट पे आओगे आप, तो इसी वजह से इनको फायर करा गया और इनको कॉन्स्पिरेटर भी बोला गया। सो दिस इज द थीम, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। जो एंड है आपके वो मीन्स को जस्टिफाई करेंगे, जो एंड रिजल्ट निकलेंगे वो तरीके जो अपनाओगे उनको जस्टिफाई करेंगे। अगर आपने गलत तरीका इख्तियार किया अकॉर्डिंग टू हिम और आपको सक्सेस मिल गई, आपका राजपाट आगे बढ़ गया, तो इट्स ओके। वो कहता है ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस सिंपल pragmatic maxim underlines Niccolo Machiavelli's classical work. So this very statement underlines his main theme. The Prince, his classical work, The Prince, he addressed his book to Lorenzo di Medici. तो अपनी बुक उन्होंने किसको एड्रेस की है? Lorenzo di Medici को।
whom he called magnificent. Here he refers to his grandfather who was known as Lorenzo the Magnificent. राइट तो ये आगे फर्स्ट सेक्शन की बात करिए बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप इसको अदरवाइज बाद में पढ़ लेना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. Similarly, this part is also not required. What we need is, though these remarks can be helpful, the first way to lose your state is to neglect the art of war. The first way to win a state is to be skilled in the art of war. तो कहीं ना कहीं वॉर को प्रमोट कर रहा है. ये मिकियावलियन, ये मॉन्स्ट्रस फीलिंग है कि वॉर इज़ नेवर गुड, लेकिन वो वॉर को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे. तो इस पार्ट को हम कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी क्वेश्चन में, किसी जो भी पेपर में पूछा जाएगा वहाँ ये काम आ सकती है. इट्स वेरी सिंपल. देन the section that is in our syllabus, it's the third section of the book, that is, and it revolves around the character and behavior of the prince. Ab the prince should know how to act according to the nature and circumstances. तो प्रिंस को इतना पता हो कि वो कैसे रिएक्ट करे किस सिचुएशन में. He should be clever like a fox and a brave like a lion. A prince should be vigilant against the conspirators and avoid everything that makes him hated or despised among the people. तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे लोगों की नफरत गेन करे. वो चाहे जितना मर्जी करप्ट हो, लोगों के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट ही छोड़ना है उसको. So one of the most powerful remedy for a prince against conspiracies is that he is not hated by the masses. अगर उसको लोग नफरत करेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे, तो उसको नफरत नहीं जीतनी, लोगों का विश्वास जीतना है, एक अच्छी इमेज बनानी है. A prince would be loved by all if he is away from these evils. तो कौन सी evils हैं जो उसको पॉपुलर करेंगे, उसको हेट नहीं करेगा कोई. Not to touch public property, women and honor. The subject will remain happy and safe. अगर वो किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी, women या किसी के ऑनर पे नज़र नहीं रख रहा तो लोग उसको पसंद करेंगे. सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे विषय नहीं है, आपके सब्जेक्ट्स नहीं है, इट मीन्स प्रजा. A prince should not be coward, rather he should show great courage. तो वो बिल्कुल भी भाई डरपोक नहीं होना चाहिए. He should be courageous, bravery और grandeur हो उसके actions में. He should show. A simple advice for the princess: a prince must read histories and in them consider the deeds of excellent men. तो deeds होते हैं actions. तो प्रिंस को कह रहा है कि पढ़ो, जैसे हर कोई राइटर है. रेनेसा में भी बेटा इंटेंसिफाइड स्कॉलरशिप थी, लोग बहुत पढ़ रहे थे पुरानी बुक्स को. तो ये यहाँ पे अपने रूलर को, जो बडिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो बनना चाहते हैं रूलर, उनको भी कह रहा है पुरानी बुक्स पढ़ो और डीड्स देखो एक्सीलेंट मैन के कि उन्होंने कैसे एक्ट किया. इसी तरह से ये सारे ट्रेट्स को, जहाँ वो उसको इंडिविजुअलिटी के लिए बोल रहा है, दैट्स अ ट्रेट ऑफ रेनेसा. ह्यूमनिज्म की बात करेगा, दैट इज ट्रेट ऑफ रेनेसा. सेकुलरिज्म की बात करेगा, किसी एक धर्म को ना वो अप्रिशिएट करे, वो रेनेसा का एलिमेंट्स है. तो ये सारे वहाँ आपके मेन आंसर के साथ भी जुड़ रहे हैं. सो अ प्रिंस शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन एंड ही शुड नॉट डिस्ट्रस्ट ऑल अराउंड हिम. ना सब पे विश्वास करे, ना सब पे शक करे. A prince should present himself as a compassionate person, merciful and sympathetic, and he should not be considered to be cruel. तो कोई उसको cruel ना माने, and he should, present himself as a compassionate person, कि इससे ज़्यादा तो emotional और concerned इंसान ही कोई नहीं है. He should be loved by his subjects and people should be afraid of him too. Very important point. वो लोगों को प्यार भी करे, but at the same time people should be afraid of him. अगर वो उससे डरेंगे नहीं, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि वो डरें भी. Since it is difficult to be both together, it is much safer to be feared than to be loved. तो प्यार भी करें लोग, उससे डरें भी, बट दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं. तो इट्स फार बेटर कि लोग उससे डरें. यू सी द हिस्ट्री, जितने रूलर्स ने आज तक रूल किया है, या इवन इफ यू आर वर्किंग समवेयर एज पार्ट टाइमर, तो आप देखो कि आपके बॉसेस जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनसे कोई नहीं डरता. पीपल यूज एंड थ्रो देम. तो जो बड़े हार्ड कोर होते हैं, लाइक दे नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन और डिसिप्लिन पे रहते हैं, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ देम एंड नोबडी कैन स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट देम. So Machiavelli here quoted the name of Caesar Borgia, who was considered cruel, but it helped him in building an empire with great order and discipline. तो एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं कि ये बॉर्जिया जो था, ये बड़ा ज़्यादा डेंजरस क्रूअल था, लेकिन लोग डरते थे और उससे इसका एम्पायर बड़ा स्ट्रांग रहा, उसके आगे कोई आवाज़ नहीं उठाता था. If a prince supports a corrupt group, his good action becomes source of hatred. तो किसी भी गलत ग्रुप को प्रिंस को
नहीं सपोर्ट करना, क्योंकि इससे सब गड़बड़ हो जाएगी. एलेक्जेंडर नेवर पनिश्ड एनीवन विदाउट ट्रायल. तो एलेक्जेंडर की एग्जाम्पल दी है, उसने बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट केस के कभी किसी को पनिश नहीं किया. बट ही वॉज हेटेड बिकॉज ही वॉज वीक एंड वॉज रूल्ड बाय हिज मदर. लेकिन लोग उसको नफरत करते थे. क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर के कहे बिना नहीं चलता था. मार्क्यूस, Pertinax and Alexander were lovers of justice, but only Marcus died with great honors. क्यों? क्योंकि बाकी जस्टिस को चाहे प्यार करते थे, लोग उनको प्यार नहीं करते थे, लोग पसंद नहीं करते थे. तो ये खामियां एक प्रिंस ने अवॉइड करनी है. A prince should have a positive reputation among his people. Such a prince rules the kingdom as well as the hearts of the public. Machiavelli has quoted the example of Bentivogli, who was prince of Bologna. He was murdered by Kenichi family, but people rose up and killed the entire family of Kenichis. ये प्यार होना चाहिए कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आपके लोग आपका बदला लें. All this was possible because of his popularity. Machiavelli's remarks. A prince can never make himself secure when the people are his enemy. तो एक इंसान अपने आप को प्रिंस कभी भी सिक्योर नहीं कर सकता अगर उसके लोग उसके क्या हैं, दुश्मन हैं. Therefore, for a prince, it is better to be cruel than merciful. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसको प्लीज लर्न करना. Therefore, for a prince, it is better to be cruel than merciful, to be unkind than generous, to be breaker of promises than keeper, to be feared than hated, to be adviser, to be with advisors than flatterers, and to be busy with great projects and wars. So this last section, it revolves, this is again not to be included. This is all what you need to learn. तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो कटा हुआ है प्लीज उसको मत देखिए. Rest of the part, it's important to learn, to prepare. This part again is additional, so I will not ask you to, and I will not teach you this. This is again about the territories. I guess this is a complete summary of the entire text actually. So again, come back to the prince. A prince must keep his bad qualities hidden. He must pose to be an ideal ruler, but no gain can come to a leader by following the ideals and principles. तो अगर वो ideals और principles को लेके खड़ा रहा तो कुछ नहीं होगा उसका. If he has cruel people around, his idealistic nature and ideals will suffer defeat. तो अगर उसके साथ बहुत चालाक और बड़े शातिर लोग हैं आसपास तो उसकी जेनरोसिटी, उसकी आइडियलिज्म, उसका नेचर क्या करेगा? वो तो लूज कर देगा सब कुछ. फॉर एग्जाम्पल, जेनरोसिटी इज अ यूजलेस क्वालिटी इन द हेड ऑफ स्टेट. क्या कह रहा है मैकियावेली यहाँ पे? हम कह रहे हैं वन शुड बी काइंड हार्टेड. वो कह रहा है कि रूलर अगर काइंड हार्टेड हो गया, ही इज गोइंग टू लूज एवरीथिंग. ये नहीं होना चाहिए. पीपल बिलीव व्हाट दे ऑब्जर्व विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. सॉरी, ही शुड प्रिटेंड टू बी गुड. कहता वो सिर्फ प्रिटेंड करे कि वो बहुत अच्छा है. बिकॉज पीपल दे ऑब्जर्व विदाउट इन्वेस्टिगेशन. वो घर जाके नहीं देखेंगे वो कैसा है, अपने सर्वेंट्स के साथ कैसा सलूक कर रहा है. वो आउटर सोशल फिगर, सोशल पिक्चर देखेंगे उसकी. अगर वो इम्प्रेसिव है, पीपल विल बी हिज डाई हार्ड फैंस. ऑर्डिनरी पीपल आर ऑलवेज टेकन इन बाय अपीयरेंस. ये कोट ही है, दिस इज इन्वर्टेड कॉमर्स में है. Ordinary people are always taken in by appearance and by the outcome of an event. And in the world, there are only ordinary people. तो कहता दुनिया में ये ordinary people जो हैं, they are always taken in by appearance. हमेशा से वो झांसे में आ जाते हैं appearance के. लेकिन पूरी दुनिया कहता ordinary people से ही भरी हुई है. मतलब हर कोई आपकी शक्ल देखेगा, आपका outer appearance देखेगा. आपका दिल किसने देखना है? आप अंदर से चाहे किसी को गालियाँ निकाल रहे हो, पीपल विल जस्ट जज यू ऑन योर फेस वैल्यू. आप कैसे मिलते हो उनको. तो ये वो यहाँ जो पैंतरे हैं ये सिखा रहा है, हाउ टू बी अ गुड रूलर, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल प्रिंस. अ प्रिंस शुड शो दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. तो उसको ये दिखाना है कि वो अपने सब्जेक्ट्स का, अपनी प्रजा का, उनके ट्रेड्स का, उनके प्रोफेशंस का, इंटरेस्ट का, उनकी बेटरमेंट का सपोर्टर है. ही वॉन्ट्स ऑल गुड फॉर देम. ये शो करना है उसको. Rightly said, a prince is also respected when he is a true friend and a true enemy. तो आपको एक प्रिंस को जनता का फ्रेंड भी बनना है, एनिमी भी बनना है. फ्रेंड बनना है
दिखाना है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है या कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करता है तो दुश्मन की तरह उसको साफ भी करना है. A prince can break his promise, but he must have a reasonable cause behind the breach of promise. Breach, तोड़ना. एक प्रिंस को कहते हैं प्रॉमिस तोड़ना चाहिए, बट सिर्फ प्रॉमिस तब तोड़े जब उसके पीछे कोई बहुत सॉलिड रीजन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रिंस हैज ऑफर्ड अ बिग फीस्ट टू हिज पब्लिक कि आज हम दावत करेंगे, और उधर से उसको ये न्यूज़ मिले कि हमला होने वाला है, तो अगर तो उसने एम ही दावत की आज मेरा मूड नहीं है, मेरे कुक ने खाना नहीं बनाया, मेरे से उठा नहीं गया, जैसे जनरली बच्चे करते हैं कि सुबह उठ नहीं पाए इसलिए कॉलेज नहीं गए, उठ नहीं पाए इसलिए आंसर नहीं लिखा, राइट. तो अगर तो ऐसे बेमायने से रीजंस हैं तो he is going to be hated by his public. But if he states that we postpone this today's feast or today's celebration because there is a danger of an outer invasion or outer attack or the attack from outside, then people are definitely going to appreciate that he has taken a quick decision for their safety. तो उसको प्यार करेंगे फिर. And here a prince should choose loyal, skilled and capable ministers. ये बहुत choose करके उसको उनको appoint करना है. Who are devoted to the nation and the crown. This is metonymy. King के लिए crown use करना. Junior classes में आपने किया होगा ये. They should be rewarded for truthful deeds and loyalty. He should never interfere with their works of managing the state or duties. A prince should never cast an evil eye on his subjects, their personal property and the honor of women. तो उसको ऐसे अच्छा रहना है, गलत नज़र नहीं डालनी उनकी चीज़ों पे. He should protect their livelihoods and encourage their work. तो उनके ट्रेड्स को बचा के रखे और उनको इनकरेज करे. ये नहीं है कि मेरे को जूते सही नहीं बना के दिए इन्होंने तो उनके सारे उनकी शॉप्स बंद करा दो. नो, उनको सपोर्ट करो, उनको प्रमोट करो. It is affirmed that for affirmed is to say positively. It is affirmed that for a successful ruler, it is mandatory that he should encourage his subjects to pursue their trades in tranquility, matlab in peace, whether in commerce, agriculture, or in any other human pursuit. Excuse me. Finally, spiritual strength, spiritual leadership is a useful tool. If ruler promotes religion, tradition and God, his citizens will not dare rebel against these powerful forces. तो लोग religion के against कभी खड़े नहीं होंगे. On the whole, it can be said, but here, before I conclude it, there's an important element also. He states that people should keep religion. He should support religion. He should follow secularism. किसी एक religion को ना करके सबके faith को वो करे, respect करे, because no religion teaches you bad things. हर एक religion अपने आप में बहुत important, बहुत powerful और inspirational है. तो बट यहाँ पे मैकियावेली ने एक ये भी लाइन कही है दैट अ रूलर शुड कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स असाइड. क्यों? क्योंकि अगर वो रिलीजन को फॉलो करेगा ना, उसको प्रमोट तो करे, अगर वो बहुत कट्टर होके फॉलो करेगा देन ही वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग रॉन्ग. वो आइडियलिस्टिक नहीं होके चल सकता. ही कैन नॉट एक्चुअली हैव लॉफ्टी आइडियाज़. वो बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें नहीं कर सकता. वो अगर भगवान के रास्ते पे चलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा, तो वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, और ऐसे बंदे के साथ बुरा हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू बी अ गुड रूलर, इन ऑर्डर टू बी अ टैक्टफुल एंड वेरी यू कैन से मैनिपुलेटिव रूलर, long staying ruler, it's important to be a little tricky too. So on the whole, it can be said that Machiavelli's The Prince is a political document which suffered harsh criticism in his times. But in contemporary thought, its literary foresight has made it a classic. आज क्लासिक बनाई है, उस टाइम पे नहीं था. उस टाइम पे इसकी बहुत निखेधी हुई है. It was like criticized like anything. Machiavelli maintains that a true leader may deceive, means cheat, trick, oppress, and even murder his opponents as long as his misdeeds serve the state's stability. State को stable रखने के लिए अगर उसको किसी को मारना भी पड़े तो उसको डरना नहीं चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको ये करना चाहिए. However, he does not champion, advocate या support violence and bloodshed. But अगर वो war की art में माहिर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लड शेड और वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, इसका सपोर्टर नहीं होना चाहिए. बट ये ज़रूर है कि अगर वो वॉर करता रहेगा, लोग उससे डरते रहेंगे. ही शुड नॉट अलाइन हिज वर्क टू क्रिश्चियन मॉरल्स. अपने वर्क को उसने अलाइन नहीं करना क्रिश्चियन मॉरल्स के साथ. एज ही एग्जामिन्स द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड लीडरशिप. तो रिलीजन को अलग रखे,
He should not mix religion with the politics. Machiavelli believed that Maurizio Viroli writes, तो क्या कहते हैं ये क्रिटिक कि इसने क्या माना है? He believed that the old way of building and preserving a regime had to be abandoned. तो इस क्रिटिक का मानना है, मॉरिजियो विरोली का मानना है कि मैकियावेली ने इस चीज़ को माना है, बिलीव किया है उसने इसमें, दैट ओल्ड वे ऑफ बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग अ रिजाइम हैड टू बी अबैंडन्ड. जब आपने लेस देन 1 लाइन कोट में मिस करनी है, यूज़ 3 डॉट्स. अगर मोर देन 1 लाइन मिस करनी है, यूज़ 4 डॉट्स. सो उसका मानना था कि मैकियावेली को पता था, ये वो बिलीव करता था कि जो पुराने वेज हैं ऑफ बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग अ रिजाइम हैड टू बी अबैंडन्ड, उनको छोड़ना होगा in order to embrace a new conception. एक नए कंसेप्शन, नए कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए पुराने जो तौर तरीके हैं रूल करने वाले, उनको छोड़ना होगा. That's it, and I hope there won't be any problem in writing this answer in your final exams. All the very best and take care. Bye bye for now. And if you can note down this simultaneously, एक बार पूरा वीडियो प्ले करके एक बार सुन लीजिए, देन टेक अप पेपर एंड पेन एंड कीप राइटिंग इट अलॉन्ग विद. इट विल गिव यू, it would be like killing two birds with one stone. You will have the writing practice as well as you will be able to learn it in in the first go, right? So all the very best and take care. All the best.